Once recording is there, we will be discussing. Okay. Yeah. It's 11:44. Good morning, all of you. And in the previous session, we were discussing about the total probability. This was the general formula for the total probability. Suppose we are having k mutually exclusive and exhaustive events, and we are having one more event A, which is occurring after one of them. Then, if we are looking for the probability of occurrence of event A, then this will be the formula, is it? And you may write down with the use of summation even. Now, when we were discussing this particular concept, total probability, we had discussed one of the example that was example number 9, कि जिसकी मदद से हमने समझा था कि why we need total probability formula. Is it? We were having 3 different machines for the production. We had labeled them as B1, B2, B3, and all they were producing some of the defective items. And if we are picking one of the item from the lot of production and we are looking for probably that randomly selected item is defective, then we need to think in 3 different ways. Might be that item is produced by first machine and it is defective, or it quite possible that that particular randomly selected item is produced by second machine and it is defective. Similarly, for the third machine, it is produced by third machine and it is defective. Then we were in need of one of the formula, जिसको हमने बोला total probability. ठीक है, अब इसी concept को थोड़ा आगे बढ़ाया अगर, what was the scene in Bayes theorem discuss अभी करेंगे, रुक जाओ, पर let me take you towards example 9, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे. Yes, this was the question कि जिसकी मदद से हमने जाना, ये हमने समझा कि हमको कोई एक नई फॉर्मूला डिफाइन करनी होगी. वो फॉर्मूला थी टोटल प्रोबेबिलिटी. जल्दी से याद करवा दूं, what was the case in this particular example? We are having 3 machines, that is B1, B2 and B3, is it? And all 3 machines are producing some of the defective. उसमें कुछ defective produce हो रहे, 2% defectives from machine B1, 3% defectives from machine B2, and 2% defectives from machine B2. Is it? Now, if we are selecting a random item from entire lot, and if we wish to identify the machine is defective, that particular item is defective, then formula क्या थी, याद करिए. We had defined 3 different events. Just a minute. I think so. I am properly audible. Is it ना, Nishi, Nimit, Harsh, ठीक से सुनाई दे रहा हूँ? Yes, sir. Yes. हाँ, हमारू चालू है, ठीक है. Yeah. So we had defined 3 different events: B1, B2, B3. Then after event D, ये 3 हमने define की थी, and we were looking for probability of event D. तो formula कुछ ऐसी बनी थी, याद कीजिए कि randomly selected item is produced by machine B1, that is first, और B1 से produce होने के बाद वो defective. So B1 will stand in the condition defective under the condition that item is produced by machine B1. This is one of the possibilities, is it? Second possibility क्या थी? Probability that selected item is produced from B2 and B2 से produce होने के बाद वो defective, D respect to B2. Similarly एक और term यहाँ पे add करेंगे, that is B3 से produce हुआ है और B3 से produce होने के बाद वो defective है. Is it? अब we are having this 3 alternate ways, so we need to add them, क्योंकि हम बोल क्या रहे हैं, या तो ये, या तो ये, या तो ये, this or this or this. Is it? So जहां पे भी हम और बोल रहे हैं, or that always leads to addition in the probability, is it? And when we are using the word and, it always leads to multiplication. So this is what the case, we are having multiplication between both these terms. क्यों? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं इसके लिए, क्या वो लाइन क्या जा रही है कि that randomly selected item is produced from machine B1 and it is defective, so that and means multiplication, this particular and यहाँ पे भी and है, तो यहाँ पे भी multiplication, यहाँ पे भी multiplication. जब और बोल रहे हैं या तो ये रास्ता, या तो ये रास्ता, या तो ये रास्ता. सो ये जो फॉर्मूला हमने डिफाइन की ना, हमने बनाई, देखिए ये अब तुझे याद नहीं रखनी, ये तुझे अंदर से पूरी वो मग नहीं करनी है, is it? क्योंकि if you're gonna remember that formula, तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि दूसरे केस में, दूसरे एग्जांपल में नोटेशन अलग होंगे. अब in this particular example we are having just 3 machines. अब हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 ही मशीन हो,
दो ही ऐसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, या हो सकता है 4 हो। इज इट? सो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखने वाले हैं तो गलत बात है, नहीं याद नहीं रखनी है, वो बनानी है। जब भी सिचुएशन आए, जब भी एग्जांपल आए, उस हिसाब से हम वो फॉर्मूला डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, तभी बनाएंगे, एट ए टाइम बनाएंगे विद जो भी नोटेशन हम डिफाइन कर रहे हैं उसके हिसाब से। अब इसी क्वेश्चन में व्हेन वी नीड बायस थ्योरम, अब बायस थ्योरम वाला भी एक कंसेप्ट है। बायस थ्योरम कहां पे आएगा? अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर छोटा सा मैं चेंज करूं ना, earlier we were finding what is the probability that the selected item is defective, that was the question, और ये हम फाइंड कर रहे थे इस फॉर्मूला से, इसी के लिए हमने ये फॉर्मूला पूरी डिराइव की। अब सोच लिया, अगर यहां पे क्वेश्चन थोड़ा मैं चेंज करूं, क्वेश्चन अगर मैं ऐसे रखूं, that randomly selected item is defective, now what are the chances that that defective item is produced from machine B1? मैं बोल ये रहा हूं, ये क्वेश्चन निकाल रहा हूं, सिमिलर सिचुएशन इज दैट, बाकी का सारा सीन ऐसे ही है, 3 मशीन प्रोडक्शन के फिगर्स दिए हुए, डिफेक्टिव के फिगर्स दिए हुए, एंड वी आर सिलेक्टिंग अ सिंगल आइटम फ्रॉम द लॉट ऑफ एंटायर प्रोडक्शन। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट what are the chances, what is the probability that a selected item which is already defective is produced from machine B1, from B1? There's the first question. I may change question like that defective item, मैं कंडीशन में दे रहा हूं कि जो आप आइटम सिलेक्ट कर रहे हो वो डिफेक्टिव ही होनी चाहिए, और वो मशीन B1 से प्रोड्यूस हुई है, या तो वो मशीन B2 से प्रोड्यूस हुई है, या तो वो मशीन B3 से प्रोड्यूस हुई है। अब if this is the case, if this is the scenario, then the total probability वाली जो फॉर्मूला है ना वो काम नहीं करेगी, बिकॉज यहां पे हम क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, क्या एक ही बात है, वी आर लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B1 कि जो रैंडमली सिलेक्टेड आइटम है वो B1 से ही प्रोड्यूस हुई है, पर कंडीशन में मैंने दे के रखा है कि व्हाट दैट वो आइटम डिफेक्टिव ही है, डिफेक्टिव है और B1 से प्रोड्यूस हुई है, डिफेक्टिव है और B2 से प्रोड्यूस हुई है। सो फॉर दिस वी विल बी लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अंडर D, for this we will be looking for probability of B2 under D respect to D, and for this we will be in need of probability of B3 respect to D. Now if we wish to identify one of them or all of them, the total probability formula will not work. We need to define one more formula, one more topic, one more concept, and that concept is known as a Bayes theorem. उसको हम बोलेंगे Bayes theorem। क्या है, चलिए लेके जाता हूं वहां पे। पहले यहां तक बताइए, Are we good up to this? Are we good up to this? क्या समझ में आ रहा है जो हम बात कर रहे हैं? कनेक्ट हो रहा है लास्ट वाले लेक्चर से? Yes or no? Yes sir, yes sir. Be honest with yourself, हाँ, be honest with yourself. It is not like that कि मुझे अच्छा लगे इसलिए आपको हाँ बोलना है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। अगर आपको लगे तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। Is it? Hello? It is not like that कि you need to always agree with me. कुछ बातें ऐसी होती है कि नहीं समझ में नहीं आ रही है समझ में, तो ठीक है भाई, बोलना है, बताना है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। लेट मी टेक यू टुवर्ड्स बायस थ्योरम। बायस थ्योरम की क्यों जरूरत है और क्यों हम सीखेंगे? देखिए कोई भी टॉपिक है, इफ यू आर नॉट गुड विद द कंसेप्ट कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत क्या है इसकी, अगर ये दिमाग में नहीं जा रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है भाई वो पढ़ने का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है बायस थ्योरम। द सिमिलर काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन इज ओवर देयर। हमने टोटल प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने भी कुछ ऐसे ही वो स्टेज के साथ स्टार्ट किया था कि वी आर हैविंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सिमिलरली सपोज वी आर हैविंग टू म्यूचुअली एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स B1 and B2, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव exhaustive मतलब कि B1 intersection B2 will be null set, B1 union B2 will be the entire sample space. Okay, so we are having two mutually exclusive and exhaustive events, and after that we are having one more event, that is event A. Then the probability of occurrence of event B1 given A is probability of occurrence of event B1 given A, मानी कि A will be your condition, A must be there in the condition, is it? What will be the formula of this? That is what we are looking for. Similarly, you may identify probability of event B2 given A. अब आपके लिए थोड़ा इसको आसान बना दूं, थोड़ा सिंपल बना दूं,
आइडेंटिफाई कीजिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन सी है, B1 B2 है। इज इट? इस केस में अभी जो हम बात कर रहे हैं उसमें B1 B2 दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है। इज इट? अगर आपको इन दोनों में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, देखिए ये है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। वो एक तो कंडीशन है पर हम देख तो रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, हियर वी आर लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ B2। इज इट? अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव वाले सेट में से किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ऑलवेज हमको चाहिए होगा एक थियरम, दैट इज बायस थ्योरम। दैट इज व्हाट द बायस थ्योरम इज। यहां पे उसकी जरूरत होगी। अब द फॉर्मूला will goes like this। आप बता पाएंगे, श्योरली आप बता पाएंगे why this will be the formula, but we'll wait from answer for your side। देखिए this will be the formula। अब थोड़ा इसको देखिए क्या है ये फॉर्मूला में। probability of B1 given A, that will be probability of A given B1 into P of B1 divided by P of A given B1 into P of B1 plus P of A given B2 into P of B2। Is it? अब थोड़ा सोचिए ये है क्या, ये है क्या सर? ये तो कोई अलग सी फॉर्मूला है क्या? ये भी याद रखनी है? नहीं, बिल्कुल याद नहीं रखनी। इट इज नॉट लाइक दैट। तो जैसे आपने वो एग्जांपल दिया था वैसे उसमें अगर फाइंड करना हो कि वो डिफेक्टिव है और वो B1 का डिफेक्टिव हो, ये वैसे ही है कि जो ऊपर वाला है वो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स और नीचे वाला टोटल आउटकम। करेक्ट करेक्ट। अगर तू ध्यान से देखे, कौन हर्ष बात कर रहा था, कौन था मेरे साथ अभी बात करने वाला? हाँ सर, हर्ष देख, अगर तू सोच ये डिनोमिनेटर है ना पूरा, क्या है? दिस इज नथिंग बट P ऑफ A। ये टोटल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है, देख ले। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमने अभी लास्ट टू लास्ट स्लाइड में डिफाइन की। दिस इज व्हाट P ऑफ A ओनली। सो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना तो ये है क्या, P ऑफ A रिस्पेक्ट टू B1 इनटू P ऑफ B1 डिवाइड बाय P ऑफ A। इज इट? डिवाइड बाय P ऑफ A, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, दैट इज नथिंग बट द टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला P ऑफ A। अगर इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें ना तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, वी आर हैविंग दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, तो इट विल लुक लाइक दिस, P ऑफ A इंटरसेक्शन B1 डिवाइड बाय P ऑफ B1 into P of B1 तो है ही है, P of B1, and in the denominator we are having P of A, both this will got cancel out और ये हो क्या जाएगा, P of A intersection B1 divide by P of A only। और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, दिस इज P of B1 रिस्पेक्ट टू A। अब देख ये होगी फॉर्मूला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई कि नहीं? वही फॉर्मूला है आपके पास। वो फॉर्मूला है P of E intersection E रिस्पेक्ट टू F। वो क्या कहते थे हम तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय P ऑफ F। इज इट ना? अब इसको इसके साथ कंपेयर कर, यही है। देख जिस नोटेशन लगे B1 रिस्पेक्ट टू A, दैट मींस A इंटरसेक्शन B1, वो ऑर्डर को B1 इंटरसेक्शन A लिखूं या A इंटरसेक्शन B1 लिखूं, कोई ऑर्डर में कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे। एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल इवेंट, दैट इज P ऑफ A। हियर इट इज, कंडीशन A है तो डिनोमिनेटर में ही है। इज इट? बट क्या आपको याद ये इसकी जरूरत क्यों? हमने इस फॉर्मूला को इस सिंपल से ऐसे क्यों बनाया? बिकॉज when we will be identifying one probability of one of the event from the set of mutually exclusive and exhaustive events, then this formula will be quite easier because we will be having all this information. We will be having all this information from the data, and it is not like that. Always we will be dealing with the two events only, two mutually exclusive exhaustive events। दो ही होगी ऐसा नहीं है। We may extend this particular formula up to 3 events, up to 4 events, up to 5 events, up to k events, but this is just for P of B respect to A। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, we are having two mutually exclusive and exhaustive event। अगर मैं फॉर्मूला फॉर्म करना चाहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ B रिस्पेक्ट टू A, तो चलिए आप में से कौन मुझे हेल्प करेगा ये फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए इस वे में, इसी फॉर्म में मुझे चाहिए। ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 under the condition event A is occurred। Now I am interested to list out the formula for the probability of B1 given A। चलिए कौन हेल्प करेगा? One of you will unmute yourself and yes please, yes please, yes Jay। नीचे तो सेम ही रहेगा, खाली ऊपर yes B1 नीचे बिल्कुल सेम रहेगा, perfect। This particular denominator will be as it is, P of A respect A given B1 into P of B1 plus P of A given B2 into P of B2। अब न्यूमरेटर बता दे जाए, The P of A by B2 A given B2
into P of B2. Absolutely correct. Absolutely correct. अब जय तू ही मेरे साथ रहे. जैसे कि मैंने बताया, it is not necessary that each and every time we will be dealing with the 2 mutually exclusive and exhaustive, and it's quite possible we are dealing with the 3 mutually exclusive and exhaustive and B1, B2, B3. शायद हमारे पास 3 इवेंट है, B1, B2, B3, जो कि तीनों mutually exclusive exhaustive है, and after the occurrence of one of them, after the occurrence, ये तीनों एक साथ नहीं हो सकती. mutually exclusive exhaustive का मतलब तीनों एक साथ नहीं हो सकती, पर तीन में से कोई एक तो होगी ही होगी. That is the meaning of mutually exclusive and exhaustive events, is it? इन तीन में से कोई एक इवेंट हो रही है, उसके बाद इवेंट ए हो रही है, सपोज. एंड इन दिस केस अगर ये दो नहीं है, मेरे पास तीन है, एंड आई एम लुकिंग फॉर पी ऑफ बी1 रिस्पेक्ट टू ए, पी ऑफ बी1 गिवन ए, तो इस फॉर्मूला में क्या चेंज होगा? क्वेश्चन समझ में आया जय तुझे? यस सर. गुड, बता. तो इस फॉर्मूला में क्या चेंज होगा? सर डिनोमिनेटर में एक और टर्म आ जाएगी. न्यूमरेटर में कुछ चेंज होगा? नहीं होगा. इज दैट करेक्ट? डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म बढ़ेगी. क्या बढ़ेगी? लिखा प्लस लिखा हूं ए P of A given B3 P3 into P of P3. एब्सोल्युटली करेक्ट. और यहां पे भी वही होगा, वही सेम टर्म यहां पे ऐड हो जाएगा, A given B3 into P of B3. And in this case we may go for P of B3 given A also. Is it? वो भी फॉर्मूला हम डिफाइन कर सकते. Now it will be easy for you guys. Is it? Now let me define this particular in the general way. इसको जाने दे. Try to identify this and let me know on the chat box whether you guys are good with this or not. Let me know on the chat box. ये कितनों को समझ में आ रहा है? Yes sir, yes sir. I'm having 40 students in front of me in this particular meet, and I need reply from each and every. All of you will drop a message on the chat box whether you guys are good with this or not. समझ में आया नहीं आया? लास्ट में ये बोल दो, भारत माता की जय, कुछ तो बोलना है. नहीं बोला नहीं चलेगा. All those who are not replying on the chat box will not give the attendance to them. हाँ, जय बोल रहा है, यस बोल रहा है, भारत माता की जय जी. यस, जरा अनम्यूट करो तो बेटा. यस, अनम्यूट योरसेल्फ. यस यस सर. सर मैं कुछ नहीं बोला. नहीं, यस बोला. यस सर बोला. हाँ, यस. भारत माता की जय. ठीक है, चल बढ़िया. पर ये बता, ये समझ में आया कि नहीं आया? बायस थ्योरम वाला कंसेप्ट. Is it? Good. Yes, hello किशन. यस किशन. यस किशन. सर एक वो था ना अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन ए, तो उसको हम इंटरसेक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते थे? कुछ वो था ना एक फॉर्मूला. फिर से बता. तू बोलता जा, मैं लिखता हूं. लिखते थे और नीचे फिर एक मिनट. क्या तू ये पूछ रहा है A गिवन B, उसको हम ऐसे लिखते थे बेटा? व्हाट इज दिस? पहले तो इसको बोल. पहले इसको बोल. इंटरसेक्शन B. रुक जा पहले. अरे रुक बेटा, रुक. पहले इसको बोल. ये है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A अंडर द कंडीशन इवेंट B हैज अकर्ड. इज इट? इस नोटेशन का मतलब ये है. अब इसकी एक्चुअल फॉर्मूला ये है जो तू पूछ रहा है. दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट A and B both are occurring together divided by probability of your conditional event, that is B. Probability that event B has occurred. Is it? This was the formula. This is the actual formula. Is it? यही फॉर्मूला है. अगर इसको तू सिंप्लीफाई करेगा ना, इस पूरे को सिंप्लीफाई करेगा, वही फॉर्मूला आएगा. यही तो मैं बोल रहा हूँ. तो इतना बड़ा लोचा करने का क्या? सीधे यही लगा क्यों नहीं देते? बस सही. यही तो मैं पिछले स्लाइड में मैंने यही बताया. तेरे पास इंफॉर्मेशन ये होगी डेटा में. प्रोबेबिलिटी दैट A अंडर B1 ये दी गई होगी. ये प्रोबेबिलिटी तुझे दी गई होगी. डेटा में से तू ये आइडेंटिफाई कर पाएगा, पर यू विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दिस डायरेक्टली. That is the reason we will be in need of this. एग्जांपल करो ना सर. ठीक है, चल वहीं पे लेके जाता हूँ. चल यहीं पे रहे. अरे चल इसको छोड़ दे. ये वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दे. ये छोड़ दे. हम वर्ड प्रॉब्लम चाहिए. इसको जाने देते. क्वेश्चन 9 हमने डिस्कस कर लिया. लेट मी टेक यू. यस, there you are. चल आइडेंटिफाई कर सिचुएशन. 3 boxes are there. 3 बॉक्स का लेबल मैंने दिया हुआ है A, B and C. We are having 3 boxes, okay, in front of us. Now, that 3 boxes are having 10%, 20% and 30% of the defective joints. Joints माने कि कोई एक प्रोडक्ट है. ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट है. तीनों बॉक्स में we are having 3 boxes with us.
box A, box B and box C. A, B and C. अब इस बॉक्स में कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, कितनी है? 10% डिफेक्टिव्स आर देयर इन दिस बॉक्स, 20% defectives are there in this box and 30% defectives are there in this box. Is it? इसका मतलब क्या है ये भी सुन. अगर तू if you are going to add this three numbers 10, 20, 30 से तो 60% डिफेक्टिव हुए, चाहे बाकी के 40% का है. ऐसे बात नहीं हो रही. इंफॉर्मेशन क्या है? इस बॉक्स में जितनी भी आइटम है उसमें से 10% डिफेक्टिव है. इस बॉक्स में जितनी भी आइटम है, जितने भी जॉइंट्स है, उसमें से 20% डिफेक्टिव है. इन दिस बॉक्स वी आर हैविंग 30% डिफेक्टिव. गेटिंग मी प्रॉपर्ली? हाँ या Yes, ना? sir, बोलता yes, sir. रहे, बोलता सही रहे, है। यहीं पे रहे, अनम्यूट म्यूट मत कर अपने आप को, मेरे साथ रहे, बात कर, ठीक है? नाउ व्हाट वी आर हाँ, डूइंग, sir, ये समझ व्हाट वी आर डूइंग, अ जॉइंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम. वी आर सिलेक्टिंग वन ऑफ द जॉइंट from this entire system, one of the joint only, one of the product only. Now, and which was found defective, हमने कुछ कोई एक जॉइंट उठाया, किसमें से? ABC है, ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है तेरे पास. इन तीनों में से कोई एक में से एक मैं उठा रहा हूं, एक जॉइंट उठा रहा हूं, एंड आई एम हैविंग दैट इंफॉर्मेशन दैट जॉइंट इज डिफेक्टिव, दैट इज defective. Now determine the probability that it comes from box A. This is our first question. Determine the probability that defective joint comes from box A. अब सोच इसको. Probability of defective given. हाँ, रुक जा. अब मुझे पहले तो ये समझाने दे कि यहाँ पे तू आइडेंटिफाई कर क्वेश्चन में कहीं पे लिखा है टोटल प्रोबेबिलिटी, लिखा है ये वर्ड यूज किया हुआ है टोटल प्रोबेबिलिटी? करनी तो पड़ेगी ना. बायस थ्योरम लिखा है कहीं? नहीं लिखा ना? नहीं किया. लिखा ही नहीं. नहीं किया. If the similar question is there in the GATE examination, and surely one of you, 50% of the audience will get stuck. अरे यार ये किसको कैसे करेंगे? Just you need to identify. We are having actually 4 different events here. हमारे पास 4 अलग-अलग इवेंट्स है. देख, एक इवेंट क्या है? इवेंट ए, जिसको हम बोलेंगे कि randomly selected joint comes from selected from box A, similarly from box B, similarly from box C. Then after defective के लिए कुछ एक और इवेंट डिफाइन करेंगे कि D stands for the defective. अब पहले तो हमको एक ही जॉइंट चूज करना है, एक ही जॉइंट सिलेक्ट करना है. तो हो सकता है वो बॉक्स ए में से आए, हो सकता है बी में से आए, हो सकता है सी में से आए. क्या ऐसा हो सकता है वो तीनों में से आए? हाँ या ना बताओ. हो सकता है मैं एक जॉइंट सिलेक्ट कर सकता हूं वो तीनों में से आ रहा है? नहीं ना. इज इट? हो सकता है वो 2 में से आ रहा है? नहीं हो सकता. दैट मींस या तो बॉक्स, यस देयर यू आर, या इसका मतलब है कि या तो ए में से, या तो बी में से, या तो सी में से. दैट मींस दिस 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं है कि चौथा बॉक्स है, 3 ही बॉक्स है. इज इट? तो इन तीनों का यूनियन मानी कि मेरा पूरा प्रोडक्शन. So these 3 events are mutually exclusive and exhaustive. अब ये तो तेरी कंडीशन है कि तू जो जॉइंट सिलेक्ट कर रहा है वो डिफेक्टिव ही है. That means that will be your condition. डिफेक्टिव तो होना ही चाहिए. Now we are looking for that defective comes from box A. That means we need probability that A respect to D. Getting me? Sir, D respect to A नहीं होगा. Defective given A. देख कंडीशन क्या है? देख, which was found. जॉइंट एक सिलेक्ट किया और वो बॉक्स ए में से है. नहीं तो तूने क्वेश्चन ठीक से नहीं रीड किया. देख, a joint is selected randomly which was found defective. अच्छा. Is it? Then determine. बॉक्स में सिलेक्ट किया, फिर वो डिफेक्टिव है. वो डिफेक्टिव है वो पता है. अब तुझे पता करना है कि वो बॉक्स ए में से. अगर तू सिर्फ पता कर रहा है कि that selected joint is defective, that means you are looking for this P of D. तो उसके लिए जाएगी वो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला केस की. हो सकता है वो ए में से आया डिफेक्टिव है, हो सकता है वो बी में से आया डिफेक्टिव है, हो सकता है सी में से आया डिफेक्टिव है. तो 3 केस हुए ना. फिर सर वो P of D भी करना है, वो भी दिखाना सर करके. P of D भी आएगा, रास्ते में आएगा. P of D रास्ते में आएगा. देख अभी, पर अभी तुझे समझ में आ रहा है कि फॉर द फर्स्ट सब क्वेश्चन वी विल बी नीड ऑफ दिस फॉर्मूला. अब देख, A respect to D. अब ये जो A है ना, it is one of from the set of mutually exclusive and exhaustive. तो वही तो हमने फॉर्मूला डिफाइन किया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सॉस्टिव में से कोई एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी तुझे फाइंड करनी है, और कंडीशन में जो है वो उसके बाद होने वाली इवेंट है. तो हमको हर बार चाहिए
बायस थ्योरम। हाँ अब तो रुक फिर जा। ये पूरा टोटल प्रोबेबिलिटी करनी पड़ेगी ना। यस, अब सुन, एक्सक्यूज मी देख सर। तो थोड़ा, देख थोड़ा। यस प्लीज, हुज दैट? सर रजत। रजत प्लीज गो अहेड। सर इसमें आपने बताया कि प्रोबेबिलिटी ए गिवन डी है, यस, तो डी गिवन ए की लैंग्वेज क्या होगी? रुक जा, लेट मी पिक माय पेन। आई जस्ट सेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी, इसका मतलब क्या है? Randomly selected joint is defective and it is from box A. It means that. Now, if we are writing like this, D respect to A, what does it mean? Try to read that. Means that a product is selected from A And it is found defective. And it is defective. Is it? तो वो तो दी हुई है, देख ये रही. Yes sir. Is it? What does 10% means? What does it 10% mean? 10% are defective from A. Yes. तो इसका मतलब तो यही होगा ना? Yes. आ रही है बात समझ में? कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes एक sir. बार फिर Understood. से सर, एक बार फिर से रिपीट करना। कौन बोला? मैं कौन सर बोला? किशन। किशन। मैं Yes, बोलेगा yes. तो मैं नहीं समझी, किशन बोल हाँ दे। सर, हाँ, नीचे वाला जो स्टेटमेंट है वो फिर से रिपीट करना सर। पी ऑफ अरे। डी वाला ए। सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। फिर से एक बार, कोई बात नहीं, जितना भी टाइम लगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सर। चल, पहले तो ये इवेंट सभी को समझ में आ रही है जिस तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूं। देख, ए बी सी एंड डी। वो तो सही है। डी मींस सिलेक्टेड जॉइंट इज डिफेक्टिव, है। joint comes from box A, that is event A, joint comes from box B, that is event B, and joint comes from box C, that is event C. Good. हाँ, अब दो में कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे कि अभी किशन ने या फिर जय ने कुछ बोला, प्रोबेबिलिटी दैट A गिवन D और प्रोबेबिलिटी दैट D गिवन है। अब ये दो क्या है, इसका मतलब तो तुझे पता होना चाहिए। इसका हाँ, मतलब क्या है, ये तुझे पता होना चाहिए। चल पहले इसके बारे में बात करते हैं। A गिवन D मतलब क्या कि डिफेक्टिव हो एंड वो बॉक्स ए में से आएगी। The joint is defective and it is from box A. तो वो तो Joint- 10%। नहीं, अच्छा, is it? हाँ या ना? हाँ ये समझ गया, बट फिर अब वो 10% वाला क्या केस है उसमें? कैसे हाँ, मतलब चल, कि- अब ये 10% का मतलब क्या है समझ। 10%, 20% and 30% of the defective joints respectively. Box A contains अगर वो बॉक्स ए 10%. है और उसमें डिफेक्टिव कितना है तो 10%। अच्छा Yes. समझ गया। हाँ। बॉक्स ए जो है यहाँ पे, उसमें जो भी प्रोडक्ट है उसमें से 10% आर डिफेक्टिव। दैट इज प्योरली मेंशन इन दिस फर्स्ट लाइन, इज इट? तो अब हाँ, देख, हाँ। इसका मतलब देख, बॉक्स ए में से डिफेक्टिव, ए इज वो अ कंडीशन। 10% वो तो गिवन है। हाँ गिवन। Yes, that is given. That is 10%. अब 10% को we need to convert in the fraction, is it? So it is 1 by 10. That means 0.1. 10 divided by 100. That means 1 by 10. That is 0.1. डिफेक्टिव ले रहे हैं बट हमें बॉक्स पता नहीं है कौन सा है। Perfect, perfect, perfect. There you are. अब आई बात समझ में, सब हर किसी को समझ में आ रही है ये बात, हाँ या ना? यस सर, यस सर। बोलो भाई, बोलो। Oh, yes, sir. आई Yes, सर, sir, आई yes. आगे समझ आ गई। यस सर यस। इन दोनों का डिफरेंस पता होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। देख, अब मैं जो बात कर रहा था ना, वो फॉर्मूला जब हम याद कर रहे थे, तुम लोग यू आर ट्राइंग टू रिमेम्बर दैट फॉर्मूला, मीनिंग ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे ए और डी यूज कर रहा हूँ, ए बी सी यूज कर रहा हूँ, वहां पे मैंने यूज किया था B1 B2, इज इट? वहां पे हम जो लिस्ट आउट कर रहे थे फॉर्मूला, वो B1 B2 B3 से कर रहे थे। दिस थ्री वर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। अब यहाँ पे देख, ABC है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सॉस्टिव इवेंट्स, इज इट? अगर तूने फॉर्मूला B1 B2 B3 में याद रखा है तो ABC में क्या याद आएगा? तू शिफ्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम है, इज इट? सो फॉर्मूला याद के गुजराती में આપણે કહીએ કે ગોખવાનો નથી. You need to create your formula, you need to generate your formula at the time of at the time of that particular example. Good. So let me move ahead. अब बाहर में जाए बाकी की बात, ये क्वेश्चन आप समझ जाएंगे, पक्की बात है। चल, let me go through the solution. What is this? P of A, P of B, P of C. Why I will be in need of this? आपको समझ में आएगा, थोड़ी देर में रुक जाओ। Now, we know that A, B, C contains 10%, 20% and 30% of the defective joints respectively. So that means what? Probability that box A में से defective, box A में से defective, इसका मतलब ये है box A में से defective, that is 10%, 10% माने कि 0.1, because we are dealing with the probability and in the probability we need to deal with the fraction between 0 to 1, is it? तो 10% है, वो percentage है, उसको fraction में convert करेंगे, that fraction gives 0.1. Same 20% is there in the box B, so defective in box B 20%, 0.2, similarly 0.3 from the box C.
अब हमको चाहिए क्या? व्हाट वी आर लुकिंग फॉर? वी आर लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी दैट जॉइंट कम फ्रॉम बॉक्स ए प्रोवाइडेड दैट इट इज डिफेक्टिव. सो डिफेक्टिव है वो हमारी कंडीशन है. सो नाउ डी, देख डी इस तरफ है कंडीशन वाली प्लेस पे, and we are looking for P of A. Right now we are talking about first question, first sub question, इसकी बारे में बात कर रहे हैं हम, first sub question के बारे में. is it? तो A respect to D, ये A जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव वाले सेट में से एक है. तो बायस थ्योरम के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्मूला ऐसी बनेगी, P of A D respect to A डिवाइड बाय P of D ओनली. डिनोमिनेटर में जो है ना वो P of D है पूरा. दिस इज P of D, दिस इज P of D. अब P of D मानी कि दैट टोटल प्रोबेबिलिटी. अब टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कोई ऐसा पूछे अगर तुझे कि कोई एक रैंडमली सिलेक्ट, कोई एक जॉइंट टू सिलेक्ट कर रहा है वो डिफेक्टिव है, तो तीन केसेस होंगे. या तो वो बॉक्स ए में से आया है और ए में से आने के बाद वो डिफेक्टिव है, दिस इज द फर्स्ट केस. या तो वो बॉक्स बी में से आया है, बॉक्स बी सिलेक्ट हुआ और उसमें से डिफेक्टिव आया, डिफेक्टिव आफ्टर बी. और तीसरा केस सी में से एंड इट इज डिफेक्टिव. इज इट? तो यही तो लिखा है, देख डिनोमिनेटर पूरा यही तो है. सो श्योरली वी विल बी इन नीड ऑफ दिस. डी रिस्पेक्ट टू ए, डी रिस्पेक्ट टू बी, डी रिस्पेक्ट टू सी, वो सीधा नहीं दिया हुआ था, वो तुझे वर्डिंग में दिया हुआ है. 10%, 20%, 30% जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में कलेक्ट किया सारा डेटा. अब P of A, P of B, P of C व्हाट? इसका मतलब क्या है? P of A, व्हाट वी मीन बाय P of A? इवेंट A हमने कैसे डिफाइन की थी? वो बॉक्स ए बी एंड सी. तो हमारे पास तीन बॉक्स है, तीन में से कोई एक आएगा. तो हर बार P of A तीन में से कोई एक आए, दैट इज 1/3. P of B will be 1/3 and P of C will be 1/3. is it? तीन में से कोई एक, तीन में से कोई एक, तीन में से कोई एक. So this way you can identify. अब ये सारा डेटा हमारे पास P of A है, P of D respect to A, P of A ये है, ये पूरा है, ये P of C and P of D respect to C. सारी बात अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, देख P of A माने कि 1/3, 10% that is 0.1. Similarly this, इसको सिंप्लीफाई करूं, ये होगा 1/6. अब चल, अगर तुझे समझ में आ रहा है ना, then surely you will able to go for box B. चलिए, जितने भी बच्चे यहाँ पे, जितने भी बच्चे यहाँ पे, surely they will try, they are going to try for box B. सेकेंड सब क्वेश्चन अगर ट्राई करके बताओ मुझे, अगर आपका आंसर सही आ रहा है, बात खत्म. आपको बायस थ्योरम वाला पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया. अब एक क्वेश्चन करे या फिर 15 क्वेश्चन करे, कोई मतलब ही नहीं. वो अगर वो पूरा फंडा तेरे दिमाग में है, बात खत्म. तुझे बायस थ्योरम इसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं तेरे लिए. चलिए, आई एम गिविंग यू प्रॉपर टाइम. ट्राई टू सॉल्व सेकेंड सब क्वेश्चन. इज इट? अब तक हम देख रहे थे बॉक्स ए. 1/3 आएगा क्या? पूरा 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 एक बार ट्राई कर ले, हर कोई ट्राई करे एक बार. है सर, 1/3 आएगा. एक दो लोग को और ट्राई करने दे, फिर दिखाता हूं. हाँ आएगा 1/3, यू आर करेक्ट. पर ट्राई करने दे दूसरों को, एंड लेट मी नो कितनों को समझ में आ रहा है सच्ची में, या फिर ऐसे ही. हो गया सर. व्हाट इज योर आंसर? 1/3. Is it? Good. Let me show you. Let me show you. There you are. Good. चलो, जितने बच्चों को ये बात पूरी समझ में आई बायस थ्योरम वाली, raise your hand. Honestly raise your hand. Be honest with yourself. जल्दी 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 जल्दी. We are already crossing the time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. बाकी के सो रहे लगता है. अमन, आनंद, अंजलि पांडे, are you there? अंजलि पांडे, Brinda. Yes, sir. You're not able to understand this concept? Yes, sir, understood. आनंद, चिंतन, हर्ष, हर्षित, जय. તમે ક્યારું ના તો કરતી તો હે. હે, મેં જોયું નહીં લે, સોરી. સારું, ચાલો, ઓલરેડી ટાઈમ વધી ગયો છે. લેટ મી સ્ટોપ ધ રેકોર્ડિંગ ફર્સ્ટ. We are crossing the time.